بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رتبہ بلند، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، انسانی گروہوں میں سے جس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت و شرف بخشا وہ انبیاء علیہم السلام کا گروہ تھا۔ انبیاء کرام زندگی کے معزز ترین عہدے پر سرفراز فرمائے گئے تھے، یعنی انسانوں کو ہدایت و رہنمائی دینے پر۔ جہاں تک سچا ہونے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام نبی ایک درجے پر تھے، البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کی بنا پر بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فوقیت بخشی ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت 253 میں ارشاد فرمایا گیا، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ ترجمہ، یہ رسول اللہ نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا ہے، اور ان میں سے بعضوں کو بہت سے درجوں میں سرفراز فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جلیل القدر پیغمبر سمجھا گیا ہے۔ اگرچہ کہ سبھی انبیاء معزز و مکرم تھے، پھر ان جلیل القدر پیغمبروں میں بھی وہ بزرگ نبی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا اور جن پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، ان کے رتبہ بلند میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ ذیل کی حدیث میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے ان خاص انعامات کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ بلند کے مظاہر تھے۔ معراج، سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 558 میں لکھا ہے، یہ وہی واقعہ ہے جو اصطلاحاً معراج و اسرا کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر اور معتبر روایات کی روح سے یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیلات بکثرت صحابہ سے مروی ہیں، جن کی تعداد 25 تک پہنچتی ہے۔ ان میں مفصل ترین روایات حضرت انس بن مالک، حضرت مالک بن صعصع، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور متعدد دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس کے بعض اجزاء بیان کیے ہیں۔ قرآن یہاں صرف مسجد حرام یعنی بیت اللہ اور مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی تصریح کرتا ہے، اور اس سفر کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ کوئی تفصیل قرآن میں نہیں بتائی گئی ہے۔ حدیث میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا کی، پھر وہ آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں مختلف جلیل القدر انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ آخر کار آپ انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ آپ کو 5 وقتہ نماز کی فرضیت کا حکم ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف پلٹے اور وہاں سے مسجد حرام واپس تشریف لائے۔
इस सिलसिले में बकसरत रिवायात से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख का भी मुशाहिदा कराया गया। आगे है, जब कुफारी कुरैश को इस वाक़े की इत्ला मिली तो उन्होंने इस बात पर सख्त ताज्जुब का इजहार किया और उसे नामुमकिन करार देते हुए झुटलाया और मजाक उड़ाया। मगर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला तो आपने एक ऐसी बात की जो एक तरफ आपके ईमान और यकीन की गहराई पर दलालत करती थी और दूसरी तरफ कुफार के एतराज़ का मुदल्लिल जवाब थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है तो फिर सच कहा है। आखिर तुम लोगों को इस पर ताज्जुब क्यों है? खुदा की कसम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये खबर देते हैं कि वही आपके पास सुबह शाम के किसी हिस्से में आसमान से ज़मीन तक आ जाती है तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करता हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुराद ये थी कि अगर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान से वही आने पर यकीन कर लेता हूँ तो फिर हुज़ूर के आसमान पर ले जाए जाने के मामले में यकीन ना करने की क्या वजह हो सकती है? जो कादिर मुतलक अपने बंदे पर आसमान से वही नाजिल कर सकता है, उसे आसमान पर ले जा क्यों नहीं सकता कि उसे मुहाल समझा जाए। अब झैल में एक हदीस पेश की जा रही है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज का हाल बयान किया गया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान किया करते थे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रात जब मैं मक्का में था, मेरे घर की छत फटी और जिब्राईल अलैहिस्सलाम नीचे उतरे। उन्होंने मेरे सीने को चाक किया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया, फिर वो सोने का एक तख्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था और उसे मेरे सीने में उंडेल दिया, फिर सीने को बंद कर दिया। इसके बाद मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आसमान पर चढ़ा ले गए। जब मैं आसमानी दुनिया यानी पहले आसमान तक पहुंचा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दारोगा या चौकीदार से कहा कि दरवाज़ा खोल दो। उसने कहा कि कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जिब्राईल है। उसने पूछा कि आपके साथ भी कोई है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने कहा कि क्या उन्हें बुलाया गया है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ। बस जब उसने दरवाज़ा खोला तो हम आसमानी दुनिया पर चढ़ गए। फिर क्या देखा कि एक शख्स बैठा हुआ था, उसके दाएं जानिब भी गिरोह दर गिरोह लोग थे और बाएं जानिब भी। जब वो अपने दाएं जानिब देखता तो हंस देता और जब वो अपने बाएं जानिब देखता तो रो पड़ता। फिर उसने मेरी तरफ देखा तो कहा कि खुदा कुशादगी इनायत करे नेक नबी को और नेक बेटे को। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि ये साहब कौन है? उसने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम है और ये गिरोह दर गिरोह लोग जो इनके दाएं और बाएं जानिब हैं, ये उनकी औलाद की रूहें हैं। इनमें जो दाएं जानिब वाले हैं वो जन्नती हैं और जो गिरोह उनकी बाएं जानिब है वो दोज़खी है। इसलिए जब ये अपनी दाएं जानिब नज़र करते हैं तो खुशी के बायस हंस पड़ते हैं और जब अपनी बाएं जानिब निगाह डालते हैं तो सदमे के बायस रो देते हैं। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले, यहाँ तक कि मुझे दूसरे आसमान तक चढ़ा ले गए। फिर उसके दारोगा से कहा कि दरवाज़ा खोल दो। तो उसके दारोगा ने भी जिब्राईल से वैसी ही बातें की जैसी पहले दारोगा ने की थी। फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि फिर हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, जो इस किस्से के रावी हैं, ज़िक्र किया कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यके बाद दीगरे मुख्तलिफ आसमानों पर चढ़ते गए और इनमें आपने हज़रत आदम, हज़रत इदरीस, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम को पाया। उन्होंने ये बयान ना किया कि इन पैगंबरों के दर्जे कैसे थे। हाँ, इतना कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमानी दुनिया पर पाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर। फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा कुशादगी इनायत फरमाए नेक नबी को और नेक भाई को। आगे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वाक़े को ख़ुद बयान करते हैं कि मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि ये कौन साहब हैं?
जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इदरीस हैं। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने भी कहा कि खुदा कुशादगी इनायत फरमाए नेक नबी और नेक भाई को। मैंने पूछा कि ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मूसा हैं। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने भी वैसे ही कहा कि खुदा कुशादगी इनायत फरमाए नेक नबी को और नेक भाई को। मैंने पूछा, ये कौन है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने भी कहा कि खुदा कुशादगी इनायत फरमाए नेक नबी को और नेक बेटे को। मैंने कहा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इब्राहीम है। इससे आगे की रिवायात के सिलसिले में इब्न शहाब बयान करते हैं कि मुझे इब्न हज़म ने बताया कि हज़रत इब्न अब्बास और अबू हबा अंसारी कहा करते थे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे ऊपर चढ़ा ले गए, यहाँ तक कि मैं बुलंद होकर एक हमवार मैदान में पहुँचा, वहाँ मुझे फरिश्तों के कदमों के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इब्न हज़म और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर ने मेरी उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की और मैं ये फ़रीज़ा लेकर वापस लौटा। यहाँ तक कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने कहा कि 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ वापस जाइए और कमी की दरख्वास्त कीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत 50 नमाज़ें पढ़ने की ताकत नहीं रखती। बस मैं लौट गया तो अल्लाह ताला ने उनका एक हिस्सा माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि आप फिर अपने रब की तरफ लौट जाइए और मज़ीद कमी की दरख्वास्त कीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाज़ों की भी ताकत नहीं रखती। चुनाचे मैं फिर लौटा तो अल्लाह ताला ने उनका एक और हिस्सा माफ़ कर दिया। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौट कर आया तो उन्होंने कहा, आप फिर अपने रब की तरफ लौट जाइए, उससे मज़ीद कमी की दरख्वास्त कीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती। चुनाचे मैं फिर लौट कर अल्लाह ताला की तरफ गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा, ये 5 रखी जाती हैं, मगर सवाब के लिहाज से ये 50 ही हैं। मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाया करती, इसलिए अगरचे अदद कम करके 5 कर दिया गया है, मगर ये 5 नमाज़ें पढ़ने से सवाब 50 नमाज़ों ही का होगा। फिर मैं लौट कर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ लौट जाइए और मज़ीद कमी की दरख्वास्त कीजिए, मगर मैंने कहा कि अब मुझे अपने रब से बार बार कहते हुए शर्म आती है। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले, यहाँ तक कि मेरे साथ सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। इस पर बहुत से रंग छा रहे थे, मैं ना समझ सका कि वो क्या हैं। फिर मुझे जन्नत में दाखिल किया गया तो देखा कि वहाँ मोतियों की लड़ियाँ हैं और वहाँ की मिट्टी मुश्क है। ये बुखारी की रिवायत थी। सिदरा बेरी को कहते हैं। अहादीस में जिस सिदरतुल मुंतहा का जिक्र है, उसके मुतल्लिक कहा जाता है कि छठे या सातवें आसमान पर अरश के दाएं जानिब एक बेरी है, जो फरिश्तों की पहुंच की आखिरी हद है, उससे आगे नहीं जा सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई भी उसके आगे नहीं गया।